Good morning, everyone. Till now, we have seen the exercise dealing with profit, loss, profit percent, loss percent, cost price, selling price with all the conditions given. If profit percent is given, cost price is given, find the selling price in every way. We have also seen the problems related with the discount percent and taxes. In taxes, we have seen GST, sales tax and VAT. What should be done with the problems related to the tax? Everything we have seen in 12.1. Now 12.2 deals with the interest, simple interest and compound interest. In class 7th, you learned it about simple interest. Now simple interest is related to three terms, and that is P into R into T by 100. P means principal, R means rate of interest, T means time period. That you know how to calculate simple interest. Then you are using the formula for calculating the amount. So amount is principal plus interest. Now whenever principal means you are borrowing some money from a bank, suppose you are borrowing some loan, you are taking some loan, or you are investing that amount, that money is called principal. Now what is interest? Interest क्या है? तो आपने कभी अपने पेरेंट्स के पासबुक में भी अगर आप देखोगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा या एक्स्ट्रा अमाउंट देता है बैंक या कोई भी दूसरी इंस्टीट्यूशन, जब आप पैसा रखते हो उधर, तो आपने ऐसा यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो. उसको 5% ब्याज मिला, उसको 10% ब्याज मिला. मीन्स इंटरेस्ट इज द अमाउंट, एडिशनल अमाउंट व्हाट banks or any other institutes or institutions are giving, related financial institutions, जहां आप पैसा रखते हो, इंटरेस्ट वो खुद दे रही है. जहां आप पैसा रख रहे हो वो बैंक खुद एक्स्ट्रा पैसा दे रही है. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट. एंड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट गिव यू अमाउंट. तो जब आप अमाउंट निकालोगे, हर बार अगर ये इंटरेस्ट ऐड होता गया तो आपको अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा. सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट. नाउ इन दिस एक्सरसाइज is dealing with the compound interest. अभी हमने क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट. जो इंटरेस्ट अगर आप लोन निकालते हो, हर एक बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. सपोज कोई बोल रहा है 10% इंटरेस्ट, कोई बोल रहा है 12%. तो आपको ये ब्याज है, ये बढ़ रहा है, हर साल आपको डिपॉजिट करना है. अगर आप 1000 रुपए का लोन निकाल रहे हो तो एटलीस्ट आपको बैंक भी अपना फायदा देखती है. अगर ब्याज ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो यू हैव टू पे मोर. अगर 1000 रुपए ले रहे हैं तो 1500 वापस करना पड़ेगा. बैंक भी अपना फायदा देखता है. इफ ही इज गिविंग यू और ओइंग यू, दे ऑल्सो सी दे आर हैविंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट? नाउ वी विल सी what is compound interest, and then we will see what is the difference between simple interest and compound interest, and finally we will see formula of compound interest and applications of simple and compound interest, right? So up till now you have the formula in your mind, that simple interest is equal to P into R into T by 100 and amount is equal to P plus I. Now we will see how actually the compound interest is calculated. Now अभी compound interest में अगर I am giving you one example, P is rupees 5000, R is 10%, T is for 3 years. Now I want to find कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा और 3 साल के बाद मुझे अमाउंट कितना मिलता है. ओके, ये अमाउंट कितना भरना पड़ेगा. अगर मैं लोन निकालती हूँ 5000 का, तो इसमें अगर 10%
10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है. So 10% of 5,000, it comes out to be 500. तो ये 500, this is interest of for first year. So amount at the end of first year will be, now what I will do, I will add 5,000 P plus I with 500, that is 5,500. हो गया फर्स्ट ईयर का. नाउ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर आई विल कैलकुलेट. तो मैं ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है उसका ही 10% कैलकुलेट करूंगी. तो वो आता है ₹550. सो अमाउंट विल बी 5,500 plus 550 and this you will get 6050. मतलब जो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट आ रहा है वो आपका सेकेंड ईयर में वो उसका 10% आपको लेना है. सिंपल इंटरेस्ट में आपका जिसका 10% ले रहे हो वो इनिशियल अमाउंट का ही होता है. दैट यू सी द डिफरेंस. नाउ दिस यू गॉट 6050. अब इसका इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर में 10% लो तो ये आ जाएगा 605. तो जो अमाउंट आपका सेकेंड ईयर में है ये प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर थर्ड ईयर. सो 6050 प्लस 605 एंड दिस इज ₹6655. तो अमाउंट एट द थर्ड ईयर आपको कितना भरना है? 6655. सो इफ आई टेल यू कि अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा हुआ आपको जब आप लोन निकालते हो, आपको पे बैक करना है वो तो ज्यादा ही है. तो आपने कितना ज्यादा इंटरेस्ट इन रुपीस किया तो आपको अमाउंट पे करना है इतना 6655 माइनस इनिशियल अमाउंट दैट इज 5,000. सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो मैंने इतना अमाउंट ज्यादा पे किया. दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट. जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट एट द फर्स्ट ईयर आ रहा है वो प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए. वो करंट ये अमाउंट का 10% निकलेगा. राइट. नाउ आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. यू नो द फॉर्मूला. ये विदाउट फॉर्मूला मैं बता रही हूं हाउ इट वर्क्स. दिस इज एग्जाम्पल इज गिवन इन योर textbook also. I have taken from your textbook. Now this is first year. This is principal, interest and year end amount. ये simple interest है और ये compound interest है. प्रिंसिपल मेरा 100 रुपीज है. मुझे निकालना है कि थर्ड ईयर के एंड में मुझे कितना अमाउंट भरना है अगर मैं 100 रुपीज का लोन लेती हूँ. Now 10% of 100 is ₹10, right? So amount will be what? P plus I, that is 110. आ गया. कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही सेम थिंग. तो फर्स्ट ईयर के एंड तक जो अमाउंट था वो सही था. नाउ फॉर सेकेंड ईयर वी विल गो. हियर the principal is 100 rupees, right? तो इसका 10% 10 ही आएगा. सो 100 तो जो ईयर के एंड में था वो मैं यहाँ पे +10 करूंगी और यहाँ पे आएगा +20. तो हर जगह इंटरेस्ट मेरा इस पे कैलकुलेट होगा इनिशियल प्रिंसिपल पे. नाउ इन कंपाउंड इंटरेस्ट यू सी व्हाट इज द डिफरेंस. यहां मेरा सेकेंड ईयर में ये जो आया है 110 वो मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा. तो इसका 10% है 11. तो मैं ऐड करती हूं तो वो आता है 121. अंडरस्टैंडिंग. दिस इज द डिफरेंस. आई एम टेकिंग 10% ऑन द इनिशियल अमाउंट ओनली, बट हियर वॉट एवर इज द अमाउंट यू आर गेटिंग ऑन दैट I am taking 10%. अभी एट द थर्ड ईयर प्रिंसिपल मेरा हमेशा 100 रुपीज ही रहेगा.
उसका 10% मतलब 10% ऑफ 100 इज 10. नाउ 120 प्लस 10 वो आ जाएगा ₹130. अमाउंट at the second year at the end plus interest is 130. Here this becomes your principal 121. इसका 10% आएगा 12.1 ऐड करके आएगा 133.10. तो ये डिफरेंस है. थर्ड अगर आप कंपेयर करो, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट सिर्फ 130 आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू आ रहा है 133. हर जगह मेरा इंटरेस्ट इनिशियल प्रिंसिपल पे हो रहा है, इधर जो अमाउंट आता है उस पे हो रहा है एट द प्रीवियस ईयर, तो इसके वजह से इधर ज्यादा है. सो इफ आई कैलकुलेट द इंटरेस्ट, अगर मुझे रुपीस में इंटरेस्ट चाहिए, सो ए माइनस पी. सो फॉर सिंपल इंटरेस्ट A minus P, that is 130 minus 100 is ₹30. Now this is for simple interest. Abhi for compound interest it is 133.10 minus 100. So that is 33.10. तो अगर आप डिफरेंस देखोगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट इन रुपीस कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा आता है. राइट? द फॉर्मूला ऑफ बोथ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन आर डिफरेंट. दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th. दिस कंपाउंड इंटरेस्ट का डेरिवेशन उन्होंने ऐसा निकाला है. You no need to do the derivation. तो उसका डेरिवेशन है if the interest is compounded annually, मतलब पूरे साल के लिए अगर आप निकाल रहे हो, so the formula is amount is equal to principal into 1 plus r by 100 raised to t. T is in years, this is in percentage. Right? And compound interest is A minus P. Right? So this is the formula of compound interest. अगर उसको क्वार्टर हाफ ईयरली करना है, हाफ ईयरली मीन्स सेमी एनुअली, मतलब आधे साल के लिए, तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? आप r/2 कर दो और t को 2 से मल्टीप्लाई करो. जो भी टाइम पीरियड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 करो. कंपाउंड इंटरेस्ट वही रहेगा A minus P. Is it clear? Now where it is used? सिंपल इंटरेस्ट ज्यादातर आप लोन निकालते हो बैंक से, तो कैलकुलेशन ऐसा ही होता है. हाँ, काफी लोग 10 साल के लिए लोन निकालते हैं, तो इस तरह ही उसका कैलकुलेशन होता है. कोई 5% ब्याज देता है, कोई 10%. इन एवरी बैंक विल हैव देयर ओन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. बट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज फॉर यूज्ड टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन इंक्रीज, डिक्रीज, या रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वहां पे ये ज्यादा यूज होता है. नाउ विद दिस फॉर्मूले वी विल कंटिन्यू फॉर गो फॉर एक्सरसाइज 8.3. This is 8th chapter 8.3. So this way we have completed these formulas. You have to write very clearly in your notebook. Hope you have found the explanation clear. If you have any doubt, then also you can ask. So now we will go for next exercise. Exercise 8.3, question 1. Calculate the amount and compound interest on ₹108,000 for 3 years at 12 whole 1/2% per annum
compounded annually. So P is given 10800, T is given 3 years, R is given 12 whole 1/2% या 25/2. अब मुझे इस फॉर्मूला से अमाउंट निकालना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. So you have this formula. Now I will substitute it. प्रिंसिपल दिया है 10800 into 25/2 into 100. तो ये आ जाएगा 200. R की जगह 25/2 divided by 100. तो ये 200. So if I will find LCM, 200 plus 25, it will be 225/100, or you can cut it here also. 5 5s are 5 4s are 20. तो अगर मैं इसको रेड्यूस करूं तो ये 1/8 आता है. सो 1 प्लस 1/8 रेज़ टू 3. तो ये आ जाएगा 10800 इंटू 9/8 raised to 3. So 9/8 you have to multiply 3 times. Now this term, if you see, it will goes by 8 directly. So if you divide it, it comes out to be 1828. 8 3s are 24. 1 8 2 24. 8 2 8 3s are 24. 8 5s are 40. Yes. Now you have to multiply all these things. 9 9s are 81. 81 into 9 is 729. 729 into 1350. You have to find that figure and divide by 64. Now 9 into 9 is 81. 81 into 9 is 729. 729 into 135. I have done, it is 984,150 divided by 8 into 8 is 64. So this rough work I have shown. So you have to do very carefully. So I got it as 15377.3 rupees. Now this is your amount. Compound interest is amount minus principal. So what is principal? 10800. So this amount minus 10800 is 4577.3. So this is then the calculation I have done. I have shown you directly. I have done it to save my time so that I can solve much more and explain you many problems. Now B1 principal is given for 18,000 rupees. Rate is 10%. T is 2.5. So and this is to be compounded annually. Annually के लिए यही फॉर्मूला रहेगा. तो हम क्या करेंगे, पहले 2 years के लिए निकालेंगे. So formula will be same. So P amount equal to P into 1 plus R by 100. तो नेक्स्ट जो भी अमाउंट आएगा वो एज अ प्रिंसिपल ले लेंगे फॉर हाफ ईयर. सो फर्स्ट वी विल फाइंड फॉर 2 year वॉट एवर अमाउंट यू आर गेटिंग. दिस इज 18,000. 1 plus 10/100. ये कट करके 1/10 आया. इट इज 11/10. दिस कम्स आउट टू बी, सी 11 is 121. 121 into 18 ये आता है 21780. ये आ गया फॉर अमाउंट. अभी मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट इज फॉर निकालना है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो वो होता है 3780. टोटल इंटरेस्ट अभी मुझे निकालना है. नाउ आई हैव टू फाइंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर. सो वॉट एवर अमाउंट यू आर गेटिंग for 2 year, that will be considered as principal as we have discussed. So into R into T by 100.
So r is 1 by 2, 5. Then here it is 5 ones 2, 1 0 8 9. तो ये आ जाएगा ₹1089. तो टोटल इंटरेस्ट अभी आएगा कितना, दोनों को ऐड कर दो. So that is 3780 plus 1089. तो कितना आएगा 3780 plus 1089, 168. Yes, this is comes out to be 4869. तो ये अभी आपको स्प्लिट करके दोनों का इंटरेस्ट आ गया. Now you want to find amount. So amount is principal plus interest. What is the initial principal? 18,000. So plus 4869. तो अगर ये करेंगे, this is 69486. This is 812. Yes, so it is comes out to be 22869. और एक बार क्रॉस चेक कर देंगे. Yes, 22869. So this is how very lengthy calculation. I am giving you only 2 sums today because you are going to solve by your own. Don't copy it, understand it and then do it. Afterwards, check with my video. So only I am going up to A and B. Tomorrow I will be continuing with on Saturday with CD and some of the word problems. Thank you.